Hello everyone, welcome back to the learning of 12th standard business studies. So for today's tutorial, I will be covering the mind mapping of chapter number 4, that is planning. So prior to this tutorial, I had duly covered the meaning of planning, further the features of planning, importance of planning, limitations and planning process, followed by cases of chapter number 4, that is planning. So आज के लिए जो हम cover करेंगे that is your mind map of your chapter number 4 as I told you earlier. So let's start with it. So जैसे यहाँ पे mention है that planning is the process of deciding in advance what to do and how to do. So do remember कि planning जो है that is of course the first function of management जो कि कोई भी manager perform करता है so as to attain objective which is predetermined in nature. So planning जो है वो primary function होता है and it basically involves in thinking in advance regarding what is to be done. So before starting any task, every manager formulates some sort of plans or the strategies of how to do that particular task. Thus planning bridges the gap between where we are and where we want to go. So if I talk about planning, so planning is deciding in advance about what work is to be done in the future. It involves establishment of objectives and developing an appropriate course of action so as to achieve these objectives. So these objectives provide the basis for all managerial decision. This is the reason why planning is considered to be so important in nature. Planning जो है वो सबसे important इसलिए माना जाता है, the reason कि उसके ऊपर अदर मैनेजमेंट के जो फंक्शंस होते हैं लाइक ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग जो होते हैं वो हेवीली डिपेंडेंट होते हैं. सो लेट्स कवर फीचर्स ऑफ प्लानिंग एट फर्स्ट. तो सबसे पहले गिवन है इट फोकसेस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स. सो डेफिनेटली जो प्लानिंग है वो गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है which helps in defining objectives and preparation of necessary action plans so as to achieve goals. So planning is focused on clarifying what is to be done, how it is to be done. So thus planning holds no purpose if it is not done or if it does not focus on achievement of present organizational or corporate objectives, which means that whatever activities we plan, it is only to achieve objectives. अगर कोई objective नहीं होगा तो of course हम लोग planning नहीं करेंगे. नेक्स्ट जो फीचर यहाँ पे हाईलाइटेड है दैट इट इज़ अ प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. सो डेफिनेटली जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि जो हर एक मैनेजमेंट है वो स्टार्ट करता है अपना मैनेजरल फंक्शन विद योर प्लानिंग ऑफ कोर्स. सो ऑल अदर फंक्शंस लाइक योर ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग आर बेस्ड अपॉन योर प्लानिंग ओनली. सो प्लानिंग जो है वो ऑफ कोर्स proceed करता है the execution of other managerial functions. If I talk about your third feature, that is planning is pervasive in nature. So planning is not only the function to be performed by the top management or any other particular department. Planning is required at all the levels of management and of course in all the department as well. So अगर हम बात करते हैं why planning is continuous and what is the important feature of प्लानिंग. सो हम यहाँ पे ये ज़रूर मेंशन कर सकते हैं दैट प्लानिंग जो है वो प्रोसेस एज अ प्रोसेस जो है इट बिगिंस विद एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन एंड जब तक एक ऑर्गेनाइजेशन कॉन्टिन्यूड रहता है, चलता है, तब तक ये प्लानिंग जो है वो हमें कैरी आउट करना होता है. इट हैज़ टू बी परफॉर्म्ड इन ऑल द सिचुएशन एंड ऑफ कोर्स एट ऑल द लेवल ऑफ वर्क. सो प्लानिंग इज़ डन फॉर अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड एंड व्हेन दैट टाइम पीरियड इज़ अबाउट टू गेट ओवर, तो उसके बाद हमें नया प्लान को फॉर्मुलेट करना होता है फॉर द न्यू पीरियड ऑफ कोर्स. सो दिस इज़ ऑफ कोर्स वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ योर प्लानिंग. एंड नेक्स्ट वी हैव प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक. सो प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक वाई? बिकॉज जो भी हम प्लान आउट करते हैं इट इज़ ऑलवेज फॉर द फ्यूचर एंड इट इज़ नेवर फॉर द पास्ट. बिकॉज पास्ट में जो एक्टिविटीज़ हो चुकी होती हैं उसको ना हम कंट्रोल कर सकते हैं, ना मोल्ड कर सकते हैं, ना ऑल्टर कर सकते हैं. सो प्लानिंग इज ऑलवेज डन फॉर द future perspective or the aspect. It involves peeping into the future, analyzing the options, preparing plans accordingly, and planning is always forward looking function which is based of course on the forecasting and उसके accordingly आपकी जो planning होती है वो create करती हो, plans को बनाती हो so that whatever your goals are for your future, so definitely आप उसको attain कर पाओ. नेक्स्ट वी हैव इट इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग. सो ऑफ कोर्स प्लानिंग जो है वो एसेंशियली एक प्रोसेस है. सो बाय मीन ऑफ दैट यू हैव टू मेक अ चॉइस आउट ऑफ वेरियस ऑप्शंस अवेलेबल एंड देयर विल बी नो नीड फॉर प्लानिंग इफ देयर इज ओनली वन कोर्स ऑफ एक्शन. अगर आपके पास सिर्फ एक ही तरीका या एक ही ऑल्टरनेटिव है किसी भी ऑब्जेक्टिव को अटेन करने का, देन ऑफ कोर्स आपको प्लानिंग करने की रिक्वायरमेंट होगी ही नहीं. बट अगर आपके पास अवेलेबिलिटी ऑफ ऑल्टरनेटिव्स काफ़ी ज़्यादा हैं, सो एज टू डिसाइड द प्रॉपर प्लान यू हैव टू for sure involve decision making and choice of course by creating an evaluation between the various alternatives जिसकी वजह से आप identify कर सकोगे the best one. Next we have कि planning is a mental exercise. Of course planning is an intellectual activity and it of course requires
द यूसेज ऑफ माइंड, इमेजिनेशन एंड साउंड जजमेंट. सो ये एक थिंकिंग फंक्शन है रादर देन द डूइंग फंक्शन. सो ऑफ कोर्स एज अ मैनेजर यू हैव टू बी वेरी मच इन टू द नॉलेज ऑफ कि आपको किस तरीके से चीज़ों को करना चाहिए. एंड प्लानिंग ऑफ कोर्स रिक्वायर करता है लॉजिकल एंड सिस्टमैटिक थिंकिंग ऑल्सो. सो इस सब चीज़ों के लिए कि कौन क्या काम होगा, कब होगा, कैसे होगा, कौन करेगा, ऑफ कोर्स आपको काफ़ी ज़्यादा डिसीजंस भी लेने होंगे. डिसीजन को लेने के लिए आपके अंदर एबिलिटी होनी चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए. सो फॉर ऑल ऑफ दीज यू नीड माइंड, दैट वाज साउंड माइंड, एंड you need your intelligence to make a best plan out of it. So planning is of course a mental exercise. So after understanding the features of planning, अब हम relate करेंगे with the importance of planning. So सबसे पहला importance it provides direction. So of course जो planning है उसकी वजह से एक जो मैनेजर है वो डिसाइड करता है इन एडवांस ऑफ कोर्स कि क्या चीज़ करनी है, कैसे करनी है, कब करनी है, कौन करेगा. सो ऑफ कोर्स बाय क्रिएटिंग और बाय सीकिंग आउट आंसर्स ऑफ दिस क्वेश्चंस आपको डायरेक्शन मिलता है सो एज टू सिक्योर फॉर द एक्शन. सो प्लानिंग जो है वो ऑब्जेक्टिव्स को अटेन करने के लिए बहुत ज़्यादा क्लियरली काम करता है. एंड इट एक्ट्स एज अ गाइड फॉर डिसाइडिंग what action should be taken in and what direction should be taken so as to attain your goals. एंड इसकी वजह से जो प्लानिंग है वो ऑफ कोर्स आपको डायरेक्शन ऑफर करता है. इट इज समवॉट लाइक अ जीपीएस जो कि आपको हेल्प आउट करता है सो एज टू कनेक्ट विद योर डेस्टिनेशन पॉइंट. सो प्लानिंग ऑफ कोर्स आपको हेल्प आउट करता है टू ऑफर द डायरेक्शन जो कि आपकी गोल्स तक आपको ले जाता है. सो नेक्स्ट जो आपका यहाँ पे इंपॉर्टेंस मेंशन दैट इज प्लानिंग रिड्यूसेस रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी. सो एज यू नो कि कोई भी बिजनेस जो है वो ऑफ कोर्स रिस्क को होल्ड करता है, अनसर्टेनिटी को होल्ड करता है. सो इफ़ यू रियली थिंक दैट कि जो प्लानिंग है वो यहाँ पे आपको हेल्प आउट कर सकता है देन ऑफ कोर्स प्लानिंग आपको हेल्प आउट कर सकता है. बिकॉज प्लानिंग फंक्शन enables a manager to look forward and to anticipate changes or the changing patterns. So by deciding in advance about how particular task is to be performed in what way and कब करेंगे हम, कैसे करेंगे. सो ऑफ कोर्स जो अनएक्सपेक्टेड चेंजेस होते हैं, अनएक्सपेक्टेड जो आपके चांसेस होते हैं, अनसर्टन इवेंट्स होते हैं, आप उसको ईजिली आइडेंटिफाई कुछ हद तक कर सकते हो. सो जो पोटेंशियल खतरा होता है, जो हर्डल्स होते हैं, आप उसको टाइमली ओवरकम भी कर सकते हो बाय मीन ऑफ हैविंग एप्रोप्रिएट प्लानिंग. बट डू रिमेंबर कि अगर प्लानिंग की वजह से इफ़ यू आर थिंकिंग दैट कि 100% आपका बिजनेस रिस्क फ्री हो जाएगा तो ऐसा नहीं है. बिकॉज प्लानिंग जो होता है वो हम एक टाइम पे प्रिपेयर करते हैं, बट उसका जो एग्जीक्यूशन होता है इट इज़ ऑफ कोर्स ऑन द डिफरेंट टाइम सेट. तो उसके बीच में अगर डिफरेंस है, गैप है, तो ऑफ कोर्स प्लानिंग जो आपने की होगी, जो एजम्पशंस फॉर्म करके आपने प्लानिंग करी होगी और उसके एग्जीक्यूशन की जो सेटिंग होगी वो डिफरेंशिएटेड हो सकती है. तो रिस्क फैक्टर रिड्यूस तो होता है बट 100% एलिमिनेट नहीं होता है. So next we have planning reduces overlapping and wasteful activities. So which means कि जब भी हम लोग प्लानिंग करते हैं ऑफ कोर्स जो एक्टिविटीज़ हमें परफॉर्म करनी होती है वो क्लियरली हमें स्पेल्ड आउट होती है बाय मीन ऑफ हैविंग एप्रोप्रिएट प्लान्स. सो बाय मीन ऑफ दैट जो आपने ऑब्जेक्टिव्स को क्लियरली स्टेट कर दिया है, आपने पहले से डिसाइड कर लिया आपको क्या काम करना है, कैसे करना है, कब करेंगे, हु वो बी द रिलायबल पर्सन जिसके ऊपर डिपेंड होकर आप काम करवाओगे. सो एवरीथिंग इज़ वेरी मच क्लियर इन नेचर. सो जिसकी वजह से कोई कन्फ्यूजन नहीं होता है, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होती है. एट द सेम टाइम आप एक स्पेसिफिक टास्क, स्पेसिफिक कोर्स ऑफ एक्शन को ही परफॉर्म करते हो विच इज़ डिज़ायर्ड आउट ऑफ योर प्लान जो कि आपको एग्जीक्यूट करने के लिए सजेस्ट किया जाता है. सो ऑफ कोर्स अननेसेसरी काइंड ऑफ एक्टिविटीज़ में आप इंडल्ज नहीं होते हो. सो बाय मीन ऑफ एप्रोप्रिएट प्लानिंग डेफिनेटली जो अननेसेसरी एक्टिविटीज़ होती हैं आप उसको परफॉर्म नहीं करते हो, आप सिस्टमैटिक अप्रोच को फॉलो करते हो सो एज टू गेट द रिजल्ट्स. नेक्स्ट वी हैव प्लानिंग प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज़. इनोवेटिव आइडियाज़ का मतलब क्या है? डिस्टिंक्टिव आइडियाज़. एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि प्लानिंग इज ऑल अबाउट योर मेंटल एक्सरसाइज. इट इज़ वन ऑफ द फीचर ऑफ योर प्लानिंग. सो इसी से इसकी इंपॉर्टेंस जनरेट होती है बाय मेकिंग द यूज़ ऑफ द ब्रेन एंड बाय मेकिंग द यूज़ ऑफ योर इंटेलिजेंस लेवल. ऑफ कोर्स आप यहाँ पे इनोवेटिव आइडियाज़ को प्रमोट करते हो, प्रिपेयर करते हो. सो प्लानिंग इज कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट चैलेंजिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट as definitely it guides the future action and promotes your growth and prosperity of business. But definitely to have a concrete plans बनाने के लिए अच्छे आइडियाज़ की ज़रूरत होती है, अच्छे मेथड्स की ज़रूरत होती है. सो डेफिनेटली ये सारी चीज़ें डिफरेंटली परफॉर्म करने के लिए आपको क्रिएटिव होना पड़ता है, आपको इनोवेटिव होना पड़ता है एंड बहुत सारे चीज़ों को एनालाइज करना पड़ता है. सो फॉर एवरी ऑफ द थिंग्स आपके पास इनोवेटिव आइडियाज़ आते हैं जब भी हम लोग प्लान आउट करते हैं. बिकॉज प्लानिंग जो है वो क्रिटिकल फंक्शन होता है, बट एट द सेम टाइम अगर वो सिस्टमैटिकली प्लान आउट किया जाता है तो डेफिनेटली आपके पास ऐसे आइडियाज़ होंगे जो कि आपको हेल्प आउट करेंगे टू कम्पीट विद द अदर राइवल ब्रांड्स जो कि ऑपरेट कर रहे हैं आपके साथ, कॉम्पिटिशन दे रहे हैं आपको.
Next, we have planning facilitates decision making. So as I told you earlier, कि planning involves looking ahead and deciding on the best alternative from and among various alternative courses of action. So जो manager है वो critically assess करता है, हर alternative को select करता है best प्लान को, जो कि वो इम्प्लीमेंट भी करेगा आगे फर्दर. सो फॉर एवरी ऑफ द थिंग ऑफ कोर्स उसको प्लान करने के लिए बहुत सारे डिसीजंस को लेना होता है, चाहे वो डिसीजन मेजर हो चाहे माइनर हो. ऑफ कोर्स हर चीज़ के लिए उसको डिसीजन मेकिंग को करना ही पड़ता है. सो दिस इज़ द रीज़न जिसको हम वजह से हम बोलते हैं कि प्लानिंग जो है वो डिसीजन मेकिंग को फैसिलिटेट करता है. नेक्स्ट वी हैव प्लानिंग एस्टैब्लिश स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग. डू रिमेंबर जो प्लानिंग है वो फर्स्ट फंक्शन होता है, एंड जब हम लोग कंट्रोलिंग की बात करते हैं तो कंट्रोलिंग इज ऑल अबाउट योर लास्ट फंक्शन टू बी परफॉर्म. सो जो दोनों के बीच का कनेक्शन है, प्लानिंग और जो कंट्रोलिंग का जो बीच का कनेक्शन है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है. सो प्लानिंग जो है वो प्रोवाइड करवाता है आपको स्टैंडर्ड या टारगेट, जिसके अगेंस्ट जो कंट्रोलिंग है वो परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करता है, चेकआउट करता है, सो एज टू नो कि वेदर जो आपने प्लान आउट किया है, जो आपने सोचा है वो आप एग्जीक्यूट कर पाओगे या नहीं, या ऑन द ट्रैक है या नहीं. सो प्लानिंग की इंपॉर्टेंस यहाँ पे ये भी हो जाती है दैट कि प्लानिंग की वजह से आप कंट्रोलिंग का बेस फॉर्म करते हो एंड यू कैन गेट द डेविएशन इफ देयर इज़ एनी. सो एज टू कंपेयर द स्टैंडर्ड्स ऑफ कोर्स आपको यहाँ पे ज़रूरी होगा प्लानिंग को होल्ड करना. सो ऑफ कोर्स प्लानिंग जो है ये भी चीज़ आपको ऑफर करता है, तो ऑफ कोर्स ये भी इसकी एक इम्पॉर्टेंस है. जैसे अभी हमने कवर किया था मीनिंग ऑफ योर प्लानिंग, फीचर्स ऑफ प्लानिंग एंड इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग. सो अब हम इसके लिमिटेशंस को अंडरस्टैंड करते हैं. सबसे पहले गिवन है लिमिटेशन में प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी. सो प्लानिंग रिजिडिटी क्यों प्रमोट करता है? द रीज़न इज़ कि जब भी एक बार हम चीज़ को प्लान आउट कर लेते हैं या जो भी कोई प्लान को फॉर्मुलेट कर लिया जाता है, सो उसके बाद क्या होता है, यू हैव टू फॉलो और एग्जीक्यूट सम स्पेसिफिक गोल्स, स्पेसिफिक टास्क जो कि आपको बोला जाता है करने के लिए एज़ पर दैट प्लान. सो डेफिनेटली इसकी वजह से हम कह सकते हैं, सजेस्ट कर सकते हैं जो प्लान होता है वो रिजिडिटी को प्रमोट करता है, एंड जिसकी वजह से ये रिजिडिटी को प्रमोट करने की वजह से एक लिमिटेशन आता है दैट कि एक बार जब आपने प्लान को फॉर्मुलेट कर दिया तो ऑफकोर्स आपको उस चीज़ को एग्जीक्यूट करना है, कैरी आउट करना है. तो ये एक प्रॉब्लमेटिक अफेयर है जो कि प्लानिंग हमें ऑफर करता है. नेक्स्ट वी हैव प्लानिंग रिड्यूसेस क्रिएटिविटी. सो प्लानिंग रिड्यूसेस क्रिएटिविटी का मतलब क्या है कि प्लानिंग जो है वो ज़्यादातर मोस्ट ऑफ द टाइम जो टॉप मैनेजमेंट होता है वो कैरी आउट करता है, वो प्रिपेयर करता है. बट डू रिमेंबर कि प्लान्स जो है वो हर एक लेवल, हर एक डिपार्टमेंट, हर एक यूनिट, हर एक डिपार्टमेंट या सेगमेंट या एम्प्लॉय क्रिएट करता है अपने फंक्शंस को स्मूथली कैरी आउट करने के लिए. बट ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन की अगर प्लानिंग की बात करें तो टॉप मैनेजमेंट सबसे ज़्यादा टाइम कंज्यूम करता है, डिवोट करता है सो एज टू प्लान फॉर द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन. सो जब भी प्लानिंग होती है तो जो मिडिल लेवल मैनेजमेंट होता है, जो अदर लेवल मैनेजमेंट होता है, उनको सजेस्ट किया जाता है दैट दे हैव टू फॉलो इट, एंड उनको ये भी परमिट नहीं होता है कि वो अपने प्लान्स जो बोले गए हैं एग्जीक्यूट करने के लिए उसमें कोई चेंजेस लेके आएँ या उससे अलग वे में काम करें. सो बाय मीन ऑफ दिस वी कैन सजेस्ट दैट कि जो प्लानिंग है वो क्रिएटिविटी को रिड्यूस कर देता है. एज एन इंडिविजुअल डिपार्टमेंट और द यूनिट अगर आपको डिस्टिंक्टिव तरीके से कोई चीज़ समझ में भी आ रही है करना, तो आप वो चीज़ कर नहीं सकते बिकॉज प्लानिंग आपको ये चीज़ ऑफर नहीं करता है. सो नेक्स्ट लिमिटेशन इज प्लानिंग इज़ अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस. टाइम कंज्यूमिंग क्यों? बिकॉज टू फ्रेम आउट और टू प्रिपेयर द बेस्ट प्लान्स काफ़ी ज़्यादा टाइम को डिवोट करना पड़ता है, बिकॉज प्लान्स रैंडमली नहीं बनते हैं, बिकॉज इट इज़ अ क्रिटिकल असेसमेंट ऑफ ऑल द ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल, एंड उस क्रिटिकल असेसमेंट में उसके पॉजिटिव, उसके नेगेटिव बहुत सारे डेटा को कलेक्ट किया जाता है, उसको स्क्रूटनाइज किया जाता है, चेकआउट किया जाता है. फॉर ऑल ऑफ दीज जो एफर्ट्स लगता है, जो टाइम लगता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है. दिस इज़ द रीज़न जो प्लानिंग है वो टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस मानी जाती है. नेक्स्ट वी हैव प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस. एज आई टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो कि हर एक बिजनेस जो है वो प्लान आउट करता है सो एज टू अटेन सक्सेस फैक्टर, बट ज़रूरी नहीं है कि अगर आपने प्लानिंग किया तो ऑफकोर्स वो आपको सक्सेस ही डिराइव करके देगा, बिकॉज जब हम प्लान आउट करते हैं तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जो आपके एग्जाम्पशंस होते हैं वो ऑफकोर्स डिफरेंट हो सकते हैं, बट व्हेन यू आर गोइंग टू एग्जीक्यूट द सेम प्लान इन डिफरेंट सेटिंग एंड इन डिफरेंट बिजनेस एनवायरमेंट. सो एज यू नो कि जो बिजनेस एनवायरमेंट है वो काफ़ी डायनेमिक होगा, वो काफ़ी ज़्यादा चेंजेबल होगा. सो यू कैंट एश्योर दैट वट एवर यू हैव प्लान इज गोइंग टू गिव यू द रिजल्ट और द सक्सेस, बट डेफिनेटली जो भी फर्म यहाँ पे प्लानिंग करती है उसका सक्सेस फैक्टर टू एन एक्सटेंट काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है एज कम्पेयर टू द फर्म जो कि प्लान आउट नहीं करती है. नेक्स्ट वी हैव प्लानिंग में नॉट वर्क इन डायनेमिक एनवायरमेंट. एज आई टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो कि जो डायनेमिक एनवायरमेंट का मतलब होता है इट इज़ समवॉट एन एनवायरमेंट जहाँ पे जो कंपोनेंट्स है वो काफ़ी फ्रिक्वेंटली चेंज होते हैं, एंड अगर आप ऐसे एनवायरमेंट में ऑपरेट करते हो जहाँ पे एनवायरमेंट काफ़ी ज़्यादा डायनेमिक है, उसके कंपोनेंट्स काफ़ी ज़्यादा चेंज होते रहते हैं, फ्रिक्वेंट चेंजेस आते रहते हैं,
सो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जो प्लानिंग आपने करी होगी वो वर्कआउट नहीं करेगी, बिकॉज जब आप प्लान करते हो तो एग्जाम्पशंस कुछ और होते हैं कि फ्यूचर में ऐसा होगा वैसा होगा, बट जब आप इसको एग्जीक्यूट या इंप्लीमेंट करते हो तो माइट भी वो चीज़ आपके फेवर में ना हो, सो जिसकी वजह से जो प्लानिंग आपने करी होगी वो फेवरेबल रिजल्ट्स को प्रोड्यूस नहीं करेगी. नेक्स्ट वी हैव प्लानिंग इन्वॉल्व ह्यूज कॉस्ट. एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि जब प्लानिंग है वो मेंटल एक्सरसाइज है. ऑफ कोर्स इट इज़ ऑल अबाउट अ माइंड गेम. सो अगर माइंड गेम के फॉर्म पे अगर आपको बेस्ट ऑफ द प्लान्स को फॉर्मुलेट करना है, सो ऑफ कोर्स यू वुड बी नीडिंग एक्सपर्ट पैनल ऑफ पीपल और द एक्सपर्टाइज, जिसकी वजह से आपको काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट इनकर करना पड़ सकता है इन द केस ऑफ पेइंग हाई सैलरीज और द हैवी और द हैंडसम अमाउंट ऑफ मनी टू देम. एंड जो सर्वे हम करते हैं सो हैज़ टू कलेक्ट द डेटा एंड ऑल, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा पैसे खर्च होते हैं. सो दिस इज़ द रीज़न प्लानिंग इज़ अबाउट एक्सपेंसिव अफेयर as listed. So now let us understand कि planning as a process क्या है. Do remember जब भी process की बात होती है तो process is all about the series of steps that has to be executed or to be carried out so as to perform the activity. So planning process systematic approach या systematic steps हैं जो कि 7 series of steps हैं and this is sequential in nature, you can't change the order of it. तो सबसे पहले है setting objective, which means that whenever we are planning for something or the other, then for sure जो आपका सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप हो जाता है दैट इज़ टू सेट द ऑब्जेक्टिव, नॉट ओनली फॉर द इंडिविजुअल यूनिट और द डिपार्टमेंट बट ऑफ कोर्स फॉर द होल ऑर्गेनाइजेशन. एंड जो ऑब्जेक्टिव आप यहाँ पे सेट आउट करते हो इट हैज़ टू बी क्लियरली स्टेटेड और लेड डाउन टू द डिपार्टमेंट्स और द पीपल और द ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल, जिसके थ्रू जितने भी आपके डिपार्टमेंट्स हैं या लोग जो आपके साथ काम करते हैं उनको क्लियर कट डायरेक्शंस मिलेंगे कि व्हाट इज़ बीइंग एक्सपेक्टेड आउट ऑफ देम. नेक्स्ट वी हैव डेवलपिंग प्रीमिसेस, विच मीन्स दैट कि जब भी आप प्लानिंग करते हो तो इट हैज़ टू बी बेस्ड अपॉन सर्टन अजम्पशंस. जैसे कि हम लॉ ऑफ डिमांड लॉ ऑफ सप्लाई पढ़ते हैं तो ऑफकोर्स उसके ऊपर अगर जब हम थीसिस को पढ़ते हैं तो वहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड क्या सजेस्ट करता है कि अदर थिंग्स रिमेनिंग कॉन्स्टेंट, मतलब बाकी सारी चीज़ें अगर कॉन्स्टेंट हैं तो ये एज्यूम हम करते हैं दैट अगर बाकी सारी चीज़ें कॉन्स्टेंट होंगी तो जो आपके प्राइजेस हैं अगर वो बढ़ते हैं या घटते हैं तो उस पर उसका डिमांड के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है. सो दिस इज़ एन अजम्पशन ऑफ योर लॉ ऑफ डिमांड. सेम वे में जब भी हमको प्लान आउट करते हैं इट हैज़ टू बी बेस्ड अपॉन सर्टन अजम्पशंस, जो कि हेल्प आउट करता है ये जानने के लिए कि क्या चीज़ हम सोच के इस चीज़ को प्लान आउट कर रहे हैं. सो डेवलपिंग प्रीमिसेस इज ऑफ कोर्स इंपॉर्टेंट फैक्टर. नेक्स्ट वी हैव आइडेंटिफाइंग ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन, विच मीन्स दैट सो एज टू अटेन योर ऑब्जेक्टिव्स you could be having multiple ways or the method or the technique और योर तरीका जिसके थ्रू आप अपने गोल्स को रियलाइज़ कर सकते हो. सो एट दिस स्टेज ऑफ कोर्स यू नीड टू आइडेंटिफाई ऑल द पॉसिबल ऑल्टरनेटिव जिसके थ्रू आप अपने गोल्स को अटेन कर सकते हो. आफ्टर दिस वी हैव इवेलुएटिंग ऑल्टरनेटिव कोर्सेज, विच मीन्स दैट जो हमने यहाँ पे ऑल्टरनेटिव्स को आइडेंटिफाई किया, नाउ टाइम हैज़ अराइजेस कि हम इसको इवेलुएट करें, कंपेयर करें, उसके प्रॉज उसके कॉन्स उसके पॉजिटिव नेगेटिव सबको इवेलुएट करें सो एज टू जज इट आउट कि कौन सा ऑल्टरनेटिव हमारे लिए फ्रूटफुल होगा. बाय कमिंग टू द स्टेज सेलेक्टिंग एन ऑल्टरनेटिव, हम यहाँ पे ये सजेस्ट करते हैं कि आउट ऑफ वेरियस ऑप्शंस जो हमें गिवन थे एट द स्टेज एंड आफ्टर कंपेयरिंग देम हमें यहाँ पे फाइनल या बेस्ट मेथड को आइडेंटिफाई करना है, पिक करना है, सेलेक्ट करना है. एंड व्हेन आई टॉक अबाउट इम्प्लीमेंटिंग प्लान, विच मीन्स दैट वॉट एवर plan you have selected you have to put that into action, you have to implement that so as to produce the result. And when I talk about a follow up action, it is the last step which is your 7th step in the planning process, जो कि आपको ये suggest करता है that कि follow up action का मतलब क्या है, that you need to generate the feedback, you have to monitor whatever you people are thinking in the form of having approved plans को execute हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, whether planning as per the implemented plan जो कि आपने select किया था वो कितना फ्रूटफुल है या ऑन द ट्रैक है या नहीं है. एंड ये सब पढ़ने के बाद विच मीन्स कॉन्सेप्ट को पढ़ने के बाद फीचर्स हो गए, लिमिटेशंस हो गए, इंपॉर्टेंस हो गए, प्रोसेस हो गए, यू कैन सी दैट हेयर यहाँ पे मेंशन है टाइप्स ऑफ प्लान्स. बट लेट मी टेल यू कि जो टाइप्स ऑफ प्लान्स है वो डेफिनेटली आपके करंट सिलेबस का पार्ट नहीं है. तो दिस इज समथिंग विच इज़ नॉट इज़ टू बी रिलेटेड एनी मोर. सो इस चीज़ को मैं रिलेट नहीं करूँगी, मैं नहीं समझाऊँगी. सो दिस वॉज ऑल अबाउट योर प्लानिंग एज अ कन्फाइंड वे में आपको रिलेट कर दिया गया है, बता दिया गया है कि प्लानिंग में हमने क्या पढ़ा था. सो दिस वाज ऑल अबाउट योर माइंड मैपिंग. सो डू रिमेंबर कि जब भी हम लोग माइंड मैपिंग किसी भी चैप्टर की करते हैं सो ये एक वे होता है, एक मैकेनिज्म होता है बाय मीन ऑफ दैट आपने जो भी कॉन्सेप्ट्स को पढ़ा होता है ऑफकोर्स आप उससे बहुत ईजिली रिलेट कर सकते हो, बिकॉज दिस इज समवॉट क्रिएटिंग मैप इन योर माइंड कि जो जो चीज़ें हमने पढ़ी हैं वो क्या क्या हैं. सो बाय मीन ऑफ दिस आप डेफिनेटली हेल्प आउट कर सकते हो
so as to learn the concept and to retain the concept for longer span of time. So अगर आपने मेरे सारे tutorials को देखा है तो for sure आपको पता है that कि after the completion of every chapter दिस इज़ द वे जिससे मैं रिलेट करती हूँ, आपको हेल्प आउट करती हूँ सो एज टू रिलेट विद द कॉन्सेप्ट्स. सो माइंड मैपिंग एक काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर टेक्निक है फॉर द स्टूडेंट्स. सो डेफिनेटली आपको इसी से रिलेट करना आना चाहिए, सीखना चाहिए, बिकॉज दिस इज़ द क्रक्स जिसके थ्रू हम लोग एलिमेंट को अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि क्या हमने पढ़ा है थ्रू आउट द चैप्टर. एंड ये काफ़ी ज़्यादा समराइज्ड वे है कि जिससे आप रिलेट कर सकते हो पूरे चैप्टर को एट वन शॉट. So this was all about your chapter number 4, planning mind mapping. So thank you so very much.